with the steel structures. We have gone through the syllabus in a short way. We have gone through the different contents which has been covered in steel structures. So overall, there are 4 units to be covered in steel structure. So today we will start the unit number 1, which is very important, related with the design of tension and compression members, and we will see the basics regarding steel. Okay, now what is a steel? What are the properties of steel? What are the advantages and disadvantages of a steel structure? Or what are the different sections in a steel structure? है ना? क्योंकि while designing any frame structures, first we have to first of all you have to while designing any structures, we have to see whether there is feasible to have a different types of sections. है ना जो sections आप देखे होंगे field में भी और different sections it has been used. So we will see how to use the different sections. What are the specialty of every sections in a detailed way? We will see, and we will start the unit number 1. Okay. First of all, what is a steel? What are the steel structures? Steel structure क्या होता क्या है? In a steel structures, structural steel is the main load carrying material to transfer the load within them and to transfer load to the ground. That means the load will be taken by the members, and through member it will be transferred to the ground. ठीक है? तो स्टील क्या करेगा? स्टील खुद लोड लेगा. The load will be taken by the members and it will be transferred to the ground. ठीक है? So this is nothing but a steel structures. Examples में क्या होंगे? There may be I beams, there may be T sections, there may be C, that is channel sections, there may be steel plates, there may be rolled sections, है ना, rolled sections भी हो सकते हैं, etc. So these are all are the steel sections, है ना. steel sections ये अलग अलग sections होते हैं उसके. I shape में भी आता है, T shape में भी आता है, C shape में भी आता है, angles में भी आता है, L shape में आता है, circular shape, rectangular shape, rolled steel sections, ये सारे जो है these are the examples of a steel sections. ठीक है ना. These are all are the examples of the steel sections. ठीक है. Next, we will see commonly steel structures are we have gone through in previous lectures also where steel sections or steel members are used. It has been used in constructions of roof truss in factories. It may be used in cinema halls. It may be used in railways, foot over bridges. Railways को जो foot over bridges जो रहता है, railway crossings में जो bridges जो रहते हैं, here in that way in railways also it can be used. In cinema halls it is used, and in factories it has been used. Okay. Next is crane girders. Crane girders you have seen in flyovers also, or in construction of metro stations में देखेंगे आपने. There is a crane girders. Crane girders मतलब कैसा रहता है? While lifting a heavy structures, and बहुत बड़े जो रहता है crane रहती है heavy structures को lift करने के लिए, वो भी जो डिजाइन होता है क्रेन गर्डर्स में, it has been designed with the help of steel structures. ठीक है ना. तो क्रेन गर्डर्स, कॉलम, बीम्स, प्लेट गर्डर्स, ब्रिजेस भी होते हैं. ट्रांसमिशन टावर्स, it has been made up of steel. वाटर टैंक्स, it has been made up of steel. चिमनीज, it has been made up of steel. चिमनीज जो है नाउअडेज, चिमनीज जो है चिमनीज है. वाटर टैंक्स है. यू हैव सीन वाटर टैंक्स इन ओल्डन डेज में जो था वो कंक्रीट के जो रहते थे, या फिर ब्रिक्स के वाटर टैंक्स होते थे. Nowadays, it has been converted to steel structures. And water tanks, it has been made up of steel. Chimneys, it has been made up of steel. ठीक है. ट्रांसमिशन टावर्स, ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके जो टावर्स जो रहते हैं, वो अगेन इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील सेक्शंस. ठीक है. So these are the commonly used steel sections. ये old arch bridge है, which is made up of steel, and it is just an example. Arch है, it is a semicircular arch है, which has been made up of steel. ठीक है ना. ये देखेंगे आप, ये rolled steel sections है, rectangular rolled है. ठीक है ना. इसके जो चारों ends जो है वो rolled है. ठीक है ना. तो rolled rectangular steel sections है. old जो structures है, it has been made up of steel. तो old arch bridge, it has been made up of steel. नेक्स्ट नाउअडेज ये फ्रेम्ड बिल्डिंग्स जो है, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस यूज हो सकते हैं. कॉलम्स में देयर में बी आई सेक्शंस. ठीक है. यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे रोल्ड सेक्शंस यूज हो रहा है. वर्टिकल्स में, हॉरिजॉन्टल में भी रोल्ड सेक्शंस यूज हो रहा है. ठीक है ना. और टॉप मोस्ट जो है वहाँ पे एल सेक्शंस, आई सेक्शंस यूज हो सकता है, जहाँ पे स्लैब वी आर लेइंग डाउन द शेड्स सबसे टॉप पोर्शन में, या फिर पार्टीशंस में. So this is nothing but again the example of steel structures. Framed buildings is again it has been taken as, it has been constructed with the help of the
स्टील सेक्शंस, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल्स है फ्रेम्ड बिल्डिंग्स का जिसमें स्टील के मेंबर्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल जो मेंबर्स है वो एल सेक्शंस का बना है, ये भी देखो हॉरिजॉन्टल में सब एल सेक्शंस बने हैं, ठीक है ना। दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर्स, ठीक है ना। दिस वर्टिकल सेक्शन इज नथिंग बट कॉलम, हॉरिजॉन्टल जितने भी दिख रहे होंगे आप फ्लोर वाइज में, इट इज नथिंग बट द बीम्स, ठीक है। So we have to connect a vertical member with a horizontal member with a different sections, उसका भी डिजाइन होता है, how to connect a vertical that is a column and beam, it is to be connected। तो ये भी again it has been covered in the designs, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल अगेन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में, ये भी देखो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में जो है अगेन इट हैज बीन टोटली मेड अप ऑफ स्टील। पूरी इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग है, पूरा जो इंडस्ट्रियल जो शेड है, इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है ना। यहाँ से लेके लास्ट एंड तक जितने भी रहेगा मीटर्स में बोलो जो रहेगा वो पूरा इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद हेल्प ऑफ स्टील। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है। जिसके मतलब सराउंडिंग्स में भी स्टील्स प्रोवाइडेड हो रहे हैं, टॉप में भी देखो है ना पर्लिन से। और ये जो स्लोपिंग पिच्ड रूफ है तो उसमें भी अगेन स्टील इट हैज बीन प्रोवाइडेड। पिच्ड रूफ है, देखो यहाँ पे पिच्ड है, स्लोपिंग है, अगेन इट हैज बीन कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड विद हेल्प ऑफ स्टील, ठीक है। दीज आर आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ये पूरा जो रहता है ऊपर में जो शेड्स जो शीट्स है, वी आर लेइंग डाउन दिस शीट्स, इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन आफ्टर कंप्लीशन इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है ना। ये पार्टीशन वॉल ये सारा जो है इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स ट्रसेस, ये देखो ट्रस, एक ट्रस का एग्जांपल मैंने निकल दिया था कि ट्रस ब्रिज फॉर रेलवेज है ना, रेलवेज के लिए यूज होता है। यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। अगेन इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है। ये जो पूरा सेक्शन से ट्रस जो है दिस, ये जो ट्रस है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज और 30 और 20 डिग्रीज विद हॉरिजॉन्टल जो भी है, इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील। ये जितना ट्रसेस दिख रहा है देखो आप, ये पूरा लास्ट तक जो किलोमीटर्स में जो रहता है इट इज टोटली मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है। अब इसमें जॉइंट्स जैसे कल मैंने बात किया था कि इट में बी अ वेल्डेड जॉइंट हो सकता है, इट में बी अ बोल्टेड जॉइंट है। ओल्डन में रिवेट भी हो सकता था, है ना, रिवेट्स होते थे, बट नाउअडेज वेल्डेड एंड बोल्टेड कनेक्शंस इट हैज बीन मोस्ट कॉमनली यूज। अब इंटरमीडिएट जो मेंबर्स है इट हैज बीन कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स, इट मे बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द वेल्डिंग्स आल्सो, ठीक है। तो ये भी एक ट्रस जो है ब्रिज इट हैज बीन नाउअडेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन बोलो या फिर यहाँ पे रोड्स के लिए बोलो या फिर रेलवेज के रेलवे ट्रैक्स के लिए, दिस ट्रस ब्रिज इट हैज बीन कॉमनली यूज, ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज भी है यहाँ पे रिवर्स में जो है क्रॉसिंग है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड जो है। अगेन दिस सस्पेंशन ब्रिज इट हैज बीन टोटली मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है ना। ये देखो ये जो कॉलम्स है इसका जो रेस्टिंग है जिसपे से रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहा है, टॉप मोस्ट सरफेस है, इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ऑल दिस इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील। ये पूरा हॉरिजॉन्टल मेंबर वर्टिकल मेंबर्स जो है ना, ये सारे जो इट हैज बीन सस्पेंशन जो ब्रिज है इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील। ये पूरा पूरा मेंबर्स जो है वो स्टील से मेड हो रहा है, ठीक है। Next is what are the advantages and disadvantages? Because while studying the steel structures, we have to keep some. There are some of the advantages and some of the disadvantages of every member, every that is the material which we are using. ठीक है ना, RCC का भी वैसे ही होगा. There may be some advantages, there may be some disadvantages. In the same way, advantages and disadvantages of steel will be there. But as compared to disadvantages, advantages are more. Therefore, the steel structures they are nowadays it has been substituting the RCC structures. They are nowadays more friendly. We are using as a construction material steel structures. So advantages क्या है? It is having a high compressive and tensile strength per unit weight. That means the high it is having a high compressive as well as a tensile strength. The strength of the steel as compared to the RCC members, it has been high compressive and tensile strength per unit weight, hence low construction weight. Saves space, again most important is low construction weight. That means it is having lightweight, therefore easy transport. Every members, that is the column or beam members, can be transported from one place to another place, and it saves space. ठीक है ना, space also it has been used reduced while using the steel structures, ठीक है. Next is good aesthetic views. While we are using the steel structures, the aesthetic views, the external views, it has been more, that is good aesthetic views can be there by using the steel structures. Quality and durability is also more good quality of that means steel is it is having a good qualities, as well as durability is the life of the steel as compared to it is more, durability is also more, lifespan is also more.
very high speed of constructions as compared to RCC, because RCC requires time for curing. Curing का time रहता है, उसके बाद फिर 15 days, 28 days, 21 days, ये जो रहता है setting time होता है. But here as compared to steel there is no as such setting time, है ना. तो very high speed of constructions होता है. The building which has been constructed in suppose 3 months or 4 months में जो RCC buildings होती है, in a 1 or 2 months it can be constructed with the help of steel, ठीक है ना. It can be constructed with the help of steel. It is having a very high speed of constructions, re usabilities and scrap value. That means we can reuse the steel members. Steel members अगर suppose ऐसा होता है कि we are having after some years, है ना, 10 years, 20 years, 15 years, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो स्टील मेंबर्स आपको रिमूव करना है और आपको दूसरा कोई स्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट करना है, तो दैट स्टील मेंबर्स कैन बी रीयूज. रीयूजेबिलिटी होता है एंड स्क्रैप वैल्यू होता है. अगर उसको अगर बेचेंगे तो देयर विल बी सम अमाउंट विल बी टेकन फ्रॉम दिस, दैट इज द स्टील मेंबर्स, ठीक है ना. तो स्क्रैप वैल्यू भी होता है उसका, रीयूजेबिलिटी हो जाता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. Better solution to cover large span and tall structures which has been made up of steel. So it can be constructed with the help of steel, ठीक है ना. डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, देखो इनिशियल कॉस्ट है, हाई इनिशियल कॉस्ट हो सकती है बिकॉज इरेक्शन कॉस्ट है, फैब्रिकेशन कॉस्ट है, वेल्डिंग्स का जो वेरियस इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, या फिर स्टील मेंबर्स आपको वन टाइम लेके आना है, तो ऑल दिस इनिशियल कॉस्ट विल बी हाई, ठीक है ना. हाई कॉस्ट रहता है इनिशियली. करोजन होगा बिकॉज स्टील इट इज करोजन रेजिस्टेंट नहीं होता है. कॉन्क्रीट इट इज समवॉट करोजन रेजिस्टेंट, बट स्टील क्या होता है, epoxy paint और वेरियस दैट इज एंटी करोजन्स के जो एजेंट्स रहते हैं, या फिर जो मटेरियल्स विच हैज टू बी अप्लाइड ऑन द स्टील एंड टू अवॉइड द करोजन, बिकॉज स्टील जो रहेगा एज कम्पेयर टू आरसीसी मेंबर्स करोजन होता है. लो फायर रेजिस्टेंस अगेन, जो मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है स्टील इट इज हैविंग एज कम्पेयर टू आरसीसी मेंबर्स, मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है स्टील का, so it is having a low fire resistant as compared to RCC members. So these are the three disadvantages of a steel structures. It is having a high initial cost, corrosion होता है, और low fire resistant होता है, ठीक है. Next is what are the properties of steel? Okay, na? What are the different properties of steel? You have, it can be covered in IS 800, that is clause number 2.2.4. ठीक है ना. 2.2.4 में ये properties of steel it has been mentioned in IS 4. ठीक है ना. Again IS 800. As I've already said in previous lecture also, कि every content to be used from IS code, IS 800, that is 2007. Every special, that is everything that has been mentioned in the C, that is 800, IS 800. So from that IS 800, we have taken the properties of steel. Gamma, that is the density of steel कितना रहेगा. Density of steel देखो 7850 kg per meter cube, that is किलो न्यूटन में अगर आप देखेंगे तो 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहता है. That is the density of steel. Modulus of elasticity क्या रहेगा, 2 into 10 to the power 5. It is 10 to the power 5, ठीक है ना. ये क्या होता है, 10 to the power 5 न्यूटन per mm square. It is nothing but the modulus of elasticity of steel. Poisson's ratio mu कितना होता है स्टील का, that is 0.3. These are the common terms which has been used for steel. स्टील के ये मतलब नॉर्मली जो अपन यूज होते हैं, तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर स्टील, है ना. उसका दैट इज डेंसिटी यूज होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज होता है, और पॉइसंस रेशियो व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन IS 800 will be used while solving the problems, है ना. These have been used for solving the problems, ठीक है. Is that clear to everyone? Yes, यहाँ तक समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. So next Yes, we sir. will proceed. Yes, Uh, sir. okay. Ductility क्या रहता है, देखो उसके some of the properties of steel, ठीक है ना. While we are using the steel, what are the different properties related with the steel is also very very important, ठीक है ना. सबसे पहला उसका ductility. Ductility क्या है? What is ductility? Ductility is the ability of the material to change its shape without fractures. मतलब without fractures we can change the shape of the particular member, है ना. कोई भी मेंबर का उसका विदाउट ब्रेकिंग और विदाउट फ्रैक्चर्स आप उसको क्या करते हैं, उसको मोल्ड करते हैं, चेंज ऑफ शेप करते हैं. दैट इज नथिंग बट द डक्टिलिटी. तो माइल्ड स्टील का क्या रहेगा, माइल्ड स्टील अगर होता है इट इज हैविंग अ हाई डक्टिलिटीज, वेयर हाई कार्बन स्टील अगर होता है इट इज हैविंग अ लो डक्टिलिटी. कार्बन स्टील का जो रहता है हाई कार्बन स्टील के लिए इट इज हैविंग अ लो डक्टिलिटी, बट माइल्ड स्टील अगर होता है इट इज हैविंग अ हाई डक्टिलिटी. व्हाट इज टफनेस एंड ब्रिटल फ्रैक्चर्स? टफनेस क्या होता है स्टील का, देखो ability of material to resist or absorb impact load like earthquake load, machine load. जो भी impact load अगर अप्लाई होता है कोई मेंबर पे, अब वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना. रेजिस्ट करेगा मतलब क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना. वो एब्जॉर्ब करेगा और ब्रेक नहीं होगा, ठीक है.
So this property is nothing but the toughness. इसको क्या बोलेंगे आप? टफनेस बोलेंगे. Ability of the material to resist or absorb impact load like earthquake load or machine load. That is nothing but the toughness. ठीक है. Requires both strength and durability. Ductility मतलब उसके अंदर जो स्टील में जो रहता है स्ट्रेंथ भी उसका अच्छा होता है और उसका डक्टिलिटी भी अच्छा होता है. लाइफ डक्टिलिटी इज द शेप चेंज ऑफ शेप. ठीक है ना. तो स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी. At low temperature, steel fails on impact load due to the reductions in ductility and toughness called brittle fractures. अगर temperature low होता है तो steel क्या होता है? Steel impact load पे fail होता है because it is having ability to small change करने की ability है. But अगर temperature कम होता है तो उसमें क्या होगा? It will fail. ठीक है ना. Steel क्या? Steel fail होता है due to impact load. It will fail due to impact load. ठीक है. टेम्परेचर क्या होता है? एट हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ रिड्यूसेस. ये तो नॉर्मल है. जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो उसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा? लेस होते जाएगा. ठीक है. करोजन का तो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज वी हैव स्टडीड. अभी अभी अपन ने पढ़े थे कि उसका एडवांटेजेस में डिसएडवांटेजेस में करोजन भी है. तो स्टील करोड्स ऑन मॉइस्ट एयर सी वाटर्स एसिड्स में पेंटिंग है. we have to use the epoxy paints or various painting or anti corrosion जो agents है we have to apply so that corrosion avoid करने के लिए metallic coatings होता है. plastic coating होता है using corrosion resistant steel to resist corrosion various nowadays. तो अभी बहुत सारे coatings use होते हैं. पेंट्स यूज होते हैं या फिर एंटी दैट इज एजेंट्स यूज होते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द करोजन. ठीक है ना. करोजन अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज द थिंग्स. ठीक है. हार्डनेस क्या है? व्हाट इज हार्डनेस? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू इंटेंशंस एंड स्क्रैचिंग. स्क्रैचिंग अवॉइड करने के लिए हार्डनेस इज रेजिस्टेंस. मतलब उसका जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो मतलब उसका जो है करोड नहीं होना है या फिर उसका जो बोलेंगे आप रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू इंटेंशंस एंड स्क्रैचिंग. ब्रिनल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस नंबर्स आर यूज टू मेजर हार्डनेस. ये जो एक्सपेरिमेंट्स है वी हैव सीन इन द कंक्रीट टेक्नोलॉजी आल्सो. ब्रिनल हार्डनेस और रॉकवेल हार्डनेस नंबर्स से डिपेंड करेगा कि वेदर द स्टील इट इज हैविंग हार्डनेस उसकी प्रॉपर है कि नहीं है. इट कैन बी सीन बाय परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है ना. यू कैन मेजर द हार्डनेस ऑफ स्टील बाय परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है. फैटिक क्या है? डैमेज ऑफ द मटेरियल थ्रू द साइक्लिक लोड. वी कैन अगर कोई मटेरियल साइक्लिक लोड की वजह से क्या होता है दैट इज डैमेज होता है. दैट इज नथिंग बट फैटिक. Damage of the material to cyclic load occurs due to moving loads or vibrations in the building. अगर moving loads है, cyclic load है और vibrations अगर buildings में होता है, कोई ऐसी testings होती है ना, movable loads होता है जिसकी वजह से there is cracks produced in the buildings or there may be damage in the buildings. It is nothing but the fatigue. ठीक है ना. ये term को क्या बोलेंगे आप? Fatigue. ठीक है. Next is residual stress. What is this? A latent stress present in the steel sections due to uneven heating and cooling. मगर कभी कभी हीट हो रहा है कभी कूल हो रहा है. अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं स्टील के अंदर इट इज नथिंग बट द रेसिडुअल स्ट्रेस. रेसिडुअल स्ट्रेस ये सारे टेक्निकल टर्म्स है विच विल बी यूज्ड इन व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बोलो और व्हाइल वी आर सीइंग द वेरियस कंटेंट्स रिलेटेड विद द स्टील स्ट्रक्चर्स. ये सारे बेसिक्स स्टडी कर रहे हैं अपन because these terms will be used. toughness है, hardness है, fatigue है, residual stresses है, hardness है. ये सारे टर्म्स ऑलरेडी आपने सॉम में भी पढ़े होंगे और सिटी में भी कुछ कुछ टर्म्स इसमें स्टडी किए होंगे. इन द फास्ट वे वी विल सी दिस टर्म्स. तो रेसिडुअल स्ट्रेसेस अनइवन जो कभी हीटिंग होता है कभी कूलिंग होता है उसमें जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं मेंबर्स में इट इज नथिंग बट द रेसिडुअल स्ट्रेसेस. स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशंस एक पॉइंट पे पूरे स्ट्रेस जाके कॉन्सेंट्रेट होते हैं. दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. नॉर्मली ये बोल्ट्स में होता है. ठीक है ना. बोल्ट का जो होल होता है बोल्ट होल्स में क्या होता है कि वो एक वीक सेक्शन और वीक पॉइंट होता है जिसमें ऑल द स्ट्रेसेस इट हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड. पूरे स्ट्रेसेस कहाँ पे जाके कॉन्सेंट्रेट होते हैं दैट इज वो बोल्ट होल्स में. ठीक है ना. बोल्ट जहाँ पे टाइट होता है और जो पॉइंट होता है दैट एट दैट पॉइंट द स्ट्रेसेस कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है ना. Underloading stresses is concentrated at places at abrupt changes in the geometry like a holes bolt. ठीक है ना. तो बोल्ट्स के जो होल रहते हैं जहाँ पे बोल्ट टाइट होता है वहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं और स्ट्रेसेस कॉन्सेंट्रेट होते हैं. ठीक है ना. स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट इज स्टील सेक्शंस. अभी जो अपन ने टर्म यूज किए थे फर्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे आपने मैंने टर्म यूज किया था आई सेक्शन, सी सेक्शंस, एल सेक्शंस और डिफरेंट सेक्शंस. So all these sections we will see or we will study in this steel structures. ठीक है ना. स्टील स्ट्रक्चर्स में ये सारे sections आप study करेंगे.
तो वन बाय वन वी विल सी, सिर्फ आपको शेप वाइज भी देखना है और उसके टॉप वेट है, बॉटम वेट है, फ्लैंज है, उसका थिकनेस कैसे मेजर होता है, उसका क्या क्या सेक्शंस है, कैसा उसका डायमेंशंस रहते हैं, है ना। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टील सेक्शंस में देखो सबसे पहला कौन सा है, देखो स्टील सेक्शंस में स्टील इज रोल्ड टू अ रिक्वायर्ड शेप ड्यूरिंग द फैब्रिकेशंस। ये तो कॉमनली अवेलेबल है। आई सेक्शंस, उसका शेप कैसा रहता है, देखो एज द नेम सेज आई सेक्शंस, इट इज हैविंग द शेप ऑफ आई। टी सेक्शंस में टी शेप में रहता है। चैनल्स, इट हैज बीन सी, सी राइट साइड ऐसा सी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है ना। इसका जो दो जो दिख रहे हैं आपको राइट साइड में दिख रहे हैं ना ओपनिंग्स, जो है उसका राइट साइड है, इसका ओपनिंग लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो सी सेक्शंस वी कैन प्लेस लेफ्ट साइड ऑल्सो। ये सी सेक्शंस है। एंगल सेक्शंस में क्या सा होता है, एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। तो ये एंगल सेक्शंस एल एल शेप में होता है। एल शेप में इट इज नथिंग बट द एंगल सेक्शंस। एंगल सेक्शन में भी होता है इक्वल एंगल सेक्शंस एंड अनइक्वल एंगल सेक्शंस, जिसमें ये दोनों जो है इसके जो लेग्स है इक्वल भी हो सकते हैं, इसके जो लेग्स है अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एंगल सेक्शंस में इक्वल एंगल सेक्शंस और अनइक्वल एंगल सेक्शंस, ठीक है। स्टील बार्स यूज होते हैं, ट्यूब, स्प्लिट, शीट, स्टेप्स जो है, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ स्टील। स्टील बार्स यूज कर सकते हैं, स्टील सर्कुलर बार्स बोलो, रेक्टेंगुलर बार्स कैन बी यूज। ट्यूब्स यूज होते हैं, प्लेट्स यूज होते हैं स्टील्स के, और शीट्स। ये सारा जो मेंबर्स है ये कहाँ पे स्टडी करेंगे आप, स्टील टेबल में, ठीक है। दिस इज अगेन द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव टू से टू यू ऑल दैट while designing the problems we have to keep in mind that two things will be required. सबसे पहली चीज जो मैंने कल बताया था आपको कि we have to use IS 800 2007. नेक्स्ट थिंग जो है that is we are using the steel table. स्टील टेबल में क्या होगा, दिस स्टील सेक्शंस के वेरियस प्रॉपर्टीज इट हैज बीन मेंशन, और वेरियस उसके जो थिंग्स इट हैज बीन मेंशनड इन स्टील टेबल, ठीक है ना। स्टील टेबल में आई टी सी एल सेक्शंस के क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रेजेंट रहता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेजेंट रहता है, उसका वेरियस यंग मॉड्यूलस और वो सारी जो चीज़ें हैं वो इट हैज बीन मेंशन इन द स्टील टेबल, ठीक है ना। तो स्टील टेबल विल आल्सो बी यूज्ड while solving the numericals. कौन सा सेक्शन इट इज सुटेबल टू कैरी द लोड, कौन सा सेक्शन है, जैसा एक लोड आता है कोई बिल्डिंग पे, तो उसका वो लोड बेयर करने के लिए विच सेक्शन इज परमिसिबल, तो दिस विल बी डिसाइडेड विद हेल्प ऑफ द स्टील टेबल। कौन उसमें स्टील टेबल में आप वो रेंज डिसाइड करेंगे और वो रेंज जाके जिससे मैच होता है दैट सेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर अ डिजाइनिंग पर्पस, ठीक है। तो स्टील टेबल विल आल्सो बी यूज्ड, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड इज, okay. So these are the common steel members. ये थोड़ा सा उसमें जो अल्फाबेटिकल था, नाउ देयर आर द शेप्स व्हिच हैज बीन अवेलेबल ऑन मार्केट। मार्केट में जो शेप्स अवेलेबल होते हैं, देखो ये सबसे पहला शेप है, देखो टी रहता है, टी शेप का, ऐसा ऐसा शेप में इट हैज बीन अवेलेबल, टी बार्स, टी शेप, ठीक है ना। टी सेक्शंस बोल सकते हैं आप। एल सेक्शन, अभी जो मैंने वर्ड बोला था आपको एल, तो दिखने में कैसा दिखता है, देखो ये एल शेप में रहता है, एल, ठीक है, एल शेप में। इट में बी इक्वल और इट में बी अनइक्वल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पार्ट्स है इसके जो दो दिख रहे हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एल सेक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल सेक्शन, एंगल, एच एस एस, ठीक है ना। ये जो है ये ट्यूब सेक्शन है, ठीक है ना। हाई स्ट्रेंथ, दैट इज द स्क्वायर सेक्शन, हाई स्ट्रेंथ है एच एस एस, हाई स्ट्रेंथ स्क्वायर सेक्शन, स्क्वायर है ना, रेक्टेंगुलर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शन, ठीक है। वाइड, दैट इज आई सेक्शन, ये आई सेक्शन, देखो आई नॉर्मली आप स्लीपर्स में देखे होंगे, रेलवे ट्रैक्स में देखे होंगे या फिर कॉलम्स में देखे होंगे, ये आई सेक्शन यूज होता है, ठीक है, आई सेक्शन, ठीक है। वैसे ये आई सेक्शन से वाइड फ्लेंज है, फ्लेंज उसका जो टॉप सरफेस है वो थोड़ा सा वाइड, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको टॉप, है ना, एज कम्पेयर टू दिस। इसका टॉप देखो नॉर्मल है, ठीक है ना। इसकी हाइट जो है, हाइट जो फ्लेंज जो बोलते हैं, हाइट जो है वेब की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द टॉप फ्लेंज। ये टॉप की जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो कम है, ठीक है। इसका रिवर्स है, इसका वर्टिकल जो हाइट थी वो कम है बट हॉरिजॉन्टल जो है फ्लेंज है उसका ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया, आई सेक्शन है बट वाइड फ्लेंज। सी सेक्शंस, ये भी एक देखो चैनल सेक्शन से सी शेप का यूज होता है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्शन, सी सेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ चैनल सेक्शन, ठीक है। अब ये टर्म्स बार बार आप डिजाइनिंग में यूज करेंगे। ये टर्म्स देखो आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एज कम्पेयर टू द यूनिट नंबर 1 to 4। जितने भी यूनिट्स है उसमें से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज टर्म्स विल बी यूज, ठीक है ना। फ्रिक्वेंटली आपको ये टर्म्स यूज होंगे
और ये टर्म्स क्या से करते हैं, मतलब व्हाट इट सेज, IJB, ISJB, ISLB, ISMB, ISWB, ISHB, ये टर्म्स बार बार आप while designing the problems or while designing the any sections, ये टर्म्स बार बार यूज होगी. इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, जे स्टैंड्स फॉर जूनियर, ठीक है ना, जे क्या स्टैंड होगा, जूनियर. इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम. इंडियन स्टैंडर्ड एल स्टैंड्स फॉर लाइट बीम, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम. इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, एम स्टैंड्स फॉर मीडियम. डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाइड, ठीक है. एंड एच स्टैंड्स फॉर हैवी. एच स्टैंड्स फॉर हैवी, ठीक है ना. तो ये सारे टर्म्स मोर फ्रिक्वेंटली वी आर यूजिंग व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, व्हाइल डिजाइनिंग. कोई भी डिजाइन करना है तो डिजाइन में ये देखना पड़ेगा वेदर ISGB इज फिजिबल और ISLB इज फिजिबल और ISMB इज फिजिबल डिपेंडिंग अपॉन इट्स सेक्शन. उसके सेक्शन के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से वेदर इट इज फिजिबल टू टेक ISMB एज अ डिजाइनिंग एस्पेक्ट, और ISWB है कौन ज़्यादा लोड लेगा, ठीक है. तो ये सारा डिजाइनिंग करना है. जैसे आप RCC में डिजाइन करते हैं कि वेदर इट इज फिजिबल टू टेक 12 mm बार और 8 mm बार और 10 mm बार, है ना. कैसे डिसाइड करेंगे आप वेदर वी हैव टू टेक 12 mm बार और 25 mm बार और 8 mm बार और 10 mm बार. उसके हिसाब से सेम वे हाउ टू डिसाइड इन स्टील सेक्शंस वी हैव टू टेक ISJB एज अ परमिसिबल लोड, or ISLB will take a permissible load, or ISMB will take the sustain the load, ठीक है. These terms will always use in solving the numerical, ठीक है ना. ये terms याद रखो. J stands for junior, L stands for light, M stands for medium, and W stands for wide, and H stands for heavy. नेक्स्ट, अब ये सेक्शन देखो, मैंने जैसा आपको कन्वे किया था, स्टील टेबल में ये सारा चीजें मेंशन है. अब रोल्ड आई सेक्शंस, ठीक है. आई सेक्शन अगर टर्म यूज होता है, उसका शेप आई है. अगर एग्जांपल में ऐसा लिखता है ISMB, तो एम अभी क्या था, व्हाट इज एम स्टैंड फॉर, यस, मीडियम. yes, medium. So Indian Standard Medium Beam. What this 500 stands for? So आईएस 500 कोड. stands आईएस. for the depth, ठीक है ना. 500 क्या स्टैंड हो रहा है, देखो यहाँ पे हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर लिखते वक्त अगर आप प्रॉब्लम में लिखा जाता है कि ISMB 500, तो दिस 500 स्टैंड्स फॉर द डेप्थ, उसकी कितनी डेप्थ है, ठीक है. इंडियन स्टैंडर्ड बीम, दैट इज द मीडियम बीम, एंड कितनी डेप्थ इसकी, दैट इज 500, तो इट हैज बीन मेंशन्ड एज 500. एंड अगर उसके साथ साथ में 0.852 किलो न्यूटन पर मीटर अगर मेंशन है, तो व्हाट दिस टर्म इट हैज बीन मेंशन, तो इट इज द वेट पर यूनिट लेंथ. 1 मीटर का क्या वेट रहेगा उसका, 1 मीटर में कितना वेट रहेगा आई सेक्शंस का, तो 1 मीटर में उसका वेट है 0.852 किलो न्यूटन. अगर किलो न्यूटन को न्यूटन्स में करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है. तो ये क्या है, इसका वेट है 1 मीटर में. अगर अगर आप उसको वेट करेंगे कोई वेविंग मशीन में जाके और यहाँ पे वेट करेंगे 1 मीटर का, अगर ये आई सेक्शन का, तो उसका वेट कितना आएगा, 0.852 किलो न्यूटन पर मीटर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई सेक्शन बहुत अलग अलग डेप्थ के मिलेंगे आपको, 550, 650, 600, 750, 250, 300, डेप्थ भी वेरी होगा, प्लस उसका वेट भी वेरी हो गया, क्योंकि ये दोनों थिंग ही आपके डिजाइन में यूज होंगे, ठीक है. अगर वेट और डेप्थ पे ही डिजाइन होगा, ठीक है ना, जो वेट कितना है आपका, उसका वेट के हिसाब से भी मालूम करेंगे कि वेदर दैट पर्टिकुलर लोड विल बी टेकन बाय दिस 0.852 किलो न्यूटन पर मीटर का वेट का जो स्टील आई सेक्शन यूज हो रहा है, उतना लोड सस्टेन करेगा नहीं करेगा, दिस अगेन विल बी डिसाइडेड, ठीक है. तो दिस टू टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो मैंने एग्जांपल दिया हूँ आई सेक्शन का, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब टॉप विड्थ रहता है, टॉप फ्लेंज फ्लेंज विड्थ रहता है, और बॉटम फ्लेंज विड्थ रहता है. इसको बोलेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल जो सेक्शंस रहते हैं इसको बोलते हैं टॉप टॉप फ्लेंज विड्थ, एफ टी, टी एफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज, टॉप फ्लेंज का थिकनेस ऑफ फ्लेंज, टी एफ, टी स्टैंड्स फॉर थिकनेस, एफ फ्लेंज स्टैंड्स फॉर फ्लेंज, ठीक है. वैसे यहाँ पे देखो थिकनेस ऑफ वेब, टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू क्या है, टी थिकनेस, डब्ल्यू वेब. वेब मतलब ये वर्टिकल मेंबर को क्या बोलेंगे आप, वेब, वर्टिकल मेंबर को बोलेंगे आप वेब. वैसे देखो नीचे में बॉटम में है विड्थ, बी, विड्थ ऑफ फ्लेंज, एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लेंज, तो बी एफ, ठीक है ना. विड्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेब.
these terms will be used while solving the numericals, ठीक है ना। ये सारा सारा जो कंसर्न थिंग्स है, ये मतलब थिंग्स विल बी यूज्ड while solving the numericals, ठीक है। ये देखो एक एग्जांपल्स है आई सेक्शंस का। जो आई सेक्शंस का देखो यहाँ पे टॉप में भी जो है ये आई सेक्शन से, कॉलम्स भी आई सेक्शंस के। ये आई सेक्शन का पूरे मेंबर्स आई सेक्शन से मेड है, पूरा मतलब पूरा जो शेड है, फैक्ट्री जो शेड है या फिर जो भी वेयर हाउस बोलो, ये फैक्ट्री शेड जो बना था यहाँ पे पूरा मेड, इट हैज बीन मेड अप ऑफ दिस आई सेक्शंस। ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे आई सेक्शंस, ये पूरा हर एक मेंबर इट हैज बीन जॉइंटेड विद बाय वेल्डिंग्स और बोल्ट से जॉइंट हो रहा है, but all the members it has been made up of the I sections, ठीक है। सेम वे देखो ये बीम कॉलम कनेक्शन से पूरा आई सेक्शन से मेड हो रहा है। देखो ये कॉलम जा रहा है वर्टिकल, दिख रहा है वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम दिख रहा है सबको। वैसे ही यहाँ पे आई सेक्शन में बीम्स भी है, देखो यहाँ पे पूरे बीम्स जो दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 हॉरिजॉन्टल जो बीम्स है वो आई सेक्शन के मेड है। वर्टिकल जो कॉलम से 1 2 3 4, ये वर्टिकल कॉलम से एक्सटीरियर कॉलम से नाम दिया है, इंटीरियर कॉलम से नाम दिया है, पूरे आई सेक्शन से मेड है, ठीक है। ठीक है, और ये जितने बीम्स दिख रहे हैं फ्लोर गर्डर्स बोल रहे हैं और फ्लोर बीम्स है, ऑल इट हैज बीन मेड अप ऑफ द आई सेक्शंस। तो वी विल डिजाइन बीम टू कॉलम डिजाइन भी होगा, एक तो सेपरेट बीम डिजाइन करेंगे आप, एक सेपरेट बीम डिजाइन होगा, फिर सेपरेट कॉलम डिजाइन होगा, फिर दोनों का कनेक्शन भी डिजाइन होगा, ठीक है ना, बीम टू कॉलम कनेक्शन भी डिजाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल्ड स्टील चैनल सेक्शंस। रोल्ड स्टील सी सेक्शंस और चैनल सेक्शंस, दिस चैनल को शॉर्ट में अगर आप बोलेंगे we can call this as C sections और channel sections, ठीक है ना, channel sections। तो अगेन उसके जो थे टर्म्स वैसे ही हो गए। आई एस एल सी, आई एस एल सी क्या रहेगा, व्हाट इज आई एस एल सी, यस आई एस एल सी क्या होगा, Indian Standard Light beam. Light Light Channel. channel sections, C stands for channel section, Indian Standard Light Channel Sections। What is ISMC, Indian Standard medium channel, Medium Channel. yes medium channel, Indian Standard HC High heavy channel. channel, Heavy heavy channel, channel. एंड आईएसएससी का थोड़ा सा एक अलग टर्म था, Standard. तो इसलिए टर्म्स यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल सेक्शन। एससी जो था वर्ड स्पेशल सेक्शन के लिए यूज हो गया, ठीक है ना। एससी जो टर्म यूज हुआ वो स्पेशल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड तो कॉमन सबके लिए, सामने में सबका टर्म कॉमन है, बट एससी स्टैंड्स फॉर द स्पेशल सेक्शन। को ऐसे शेप रहते हैं, इसमें आई भी नहीं है, सी भी नहीं है, एल भी नहीं है, बट मेरा डिजाइनिंग में मैंने क्या किया, उसको फैक्ट्री में उसको ऑर्डर दिया कि भाई मेरे को ये सेक्शन ऐसे शेप में होना और इसका वेट ऐसा रहेगा, इसका लेंथ ऐसा रहेगा, इसका वेट ऐसा रहेगा, और आपको ये सेक्शन इसको बनाना है, ठीक है। तो ये अगर स्पेशल, अगर कोई अपन स्पेशल स्पेसिफिकेशंस के साथ अगर कोई कंस्ट्रक्शन मतलब फैक्ट्री से अगर बना के लाता है तो उसके लिए आईएसएससी होता है, ठीक है। अब सेम एग्जांपल जैसा मैंने आई का दिया था, वैसे सेम एग्जांपल आईएसएमसी का दे रहा हूँ, जिसमें 300 स्टैंड्स फॉर, 300 स्टैंड्स फॉर द डेप्थ, जैसा वहाँ पे डेप्थ था ना, तो ऐसा यहाँ पे 300 स्टैंड्स फॉर द डेप्थ। अगेन 0.351 इट हैज बीन द वेट पर मीटर्स। ये क्या स्टैंड्स करेगा, ये इट इज नथिंग बट द वेट, एक मीटर में कितना वेट रहेगा सी सेक्शन का। जैसा वहाँ पे देखेंगे आपने 0.8 था नियर अबाउट, ठीक है, यहाँ पे 0.3 है, सी का थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू 50% कम है आई सेक्शन के। तो ये 0.351 था, वहाँ पे 0.8 था आई सेक्शन के लिए। ये टॉप विथ बोलेंगे आप, ठीक है ना, टॉप फ्लेंज विथ, ठीक है ना, फ्लेंज विथ, इसको भी वैसे नाम देंगे आप, बी एफ, फ्लेंज विथ, ठीक है, फ्लेंज, टॉप फ्लेंज, फ्लेंज विथ, बॉटम फ्लेंज विथ, ठीक है। और ये वर्टिकल को जैसा आई सेक्शन में बोले थे, तो यहाँ पे भी वैसी वेब होगा, टी डब्ल्यू, टी सफिक्स डब्ल्यू, टी डब्ल्यू नाम देंगे आप इसको, ठीक है। तो सेम रिपीटिंग, आपके माइक्स, माइक्स बंद करो, ओके। नेक्स्ट ये भी देखो, ऑल द सेक्शंस इट हैज बीन मेड अप ऑफ सी सेक्शंस, दैट इज द चैनल सेक्शंस। जैसे मैंने आई का एग्जांपल दिया था आपको शेड, वैसा एक सी का शेड देखो, शेड है ये पूरा शेड इट हैज बीन मेड अप ऑफ सी सेक्शंस। हर एक मेंबर सी का बना है, यहाँ पे सी सेक्शन का बना है, देखो यहाँ पे सी सेक्शन का है, सी जो शेप का दिख रहा है, हर एक मेंबर्स वेदर इट हैज बीन अ कॉलम, वेदर इट हैज बीन अ बीम्स, हॉरिजॉन्टल बीम बोलो और एक्स और वाई डायरेक्शन की जो बीम्स है, वो सारे बीम्स जो है एक्स और वाई डायरेक्शंस के जो बीम्स है, इट हैज टोटली मेड अप ऑफ द सी सेक्शन, दैट इज द चैनल सेक्शन।
वर्टिकल जो मेंबर्स है वो भी चैनल सेक्शन से मेड है, हॉरिजॉन्टल जो एक्स और वाई डायरेक्शन में जो मेंबर्स है वो भी सारे के सारे इट हैज बीन मेड अप ऑफ द चैनल सेक्शन, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आई सेक्शन का पूरा फ्रेम है, सी सेक्शन का पूरा फ्रेम है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड सी, कुछ मेंबर्स आई के होंगे, कुछ मेंबर्स सी के होंगे, कुछ मेंबर्स एल के होंगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन का भी आप डिजाइन कर सकते हैं, डिजाइन करना आपके हाथ में, ठीक है। आप कैसा डिजाइन करते हैं, कितना लोड कैरी होता है, कि वेदर इट इज फिजिबल टू टेक ऑल द सी सेक्शंस, whether it is feasible to take all the I sections or the combination of C and I sections and L sections, ये सारा डिजाइन पैरामीटर्स है, ये सारा थिंग्स इट हैज बीन टेकन एज अ डिजाइन पैरामीटर्स। तो आपके ऊपर डिसाइड करेंगे आप क्या उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब थर्ड देखो, ये सारे सेक्शंस यूज होंगे आप, ये आज का थोड़ा सा कैसा है कि इंफॉर्मेटिव सेशन था स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट इसमें एक्चुअली वी विल हैव अ डिजाइन कंसेप्ट, उसका जो डिजाइन रहेगा वो सारा कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई टू कवर, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी के बेस पे आप डिजाइन करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, कैसा दिखता है, कैसा उसका रीड होता है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस, ठीक है। एंगल में जैसे मैंने इससे पहले मैं बताया था, देयर में भी इक्वल एंगल, देयर में भी अनइक्वल एंगल्स, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल होगा तो क्या होगा, देखो 150 बाय 150, इसको नाम देते वक्त L1 L2 भी बोल सकते हैं, या फिर LBH और थिकनेस भी बोल सकते हैं, L1 L2 एंड T बोलते हैं, L1 L2, 150 by 150 by 12. What this 12 stands for? This 12 stands for the thickness. 12 it stands for the this thickness. ये 12 क्या stands क्या बताता है लास्ट में? It has been nothing but the thickness. ठीक है, 150 by 150 it has an equal angle sections. Indian standard A stands for angle sections, ISE, ठीक है। अनइक्वल में देखो ISE 150 by 115 by 12. Again this 12 is the thickness, 115 is L1 L2. तो दिस इज अनइक्वल, ये फर्स्ट इसमें 150 बाय 150 था, यहाँ पे 150 बाय 115, ठीक है। इसमें देखेंगे एग्जांपल्स में, देखो ये भी अनइक्वल का एग्जांपल है, ये भी अनइक्वल का अनइक्वल, ठीक है। ये अनइक्वल के एग्जांपल से इक्वल में क्या होगा, दोनों एंड्स जो रहेंगे इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रहेगा इट हैज बीन सीन, ठीक है ना, 150 बाय 150। अगेन ये एग्जांपल से एल सेक्शंस का देखो, ये पूरे एल सेक्शंस के एग्जांपल्स देखो कहाँ पे हैं, दैट हैज बीन मेड अप ऑफ जो ट्रांसमिशन जो टावर्स जो रहता है व्हाइल ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड्स, ये ट्रांसमिशन जो टावर्स इट हैज बीन मेड अप ऑफ द एल सेक्शंस। आपने देखे होंगे, आपने नियर बाय जो हो गया यहाँ पे भी यहाँ पे होगा ये, तो ये एल सेक्शंस इट हैज बीन मेड अप ऑफ द एल सेक्शंस, ये पूरा जो रहता है ट्रांसमिशन टावर इट हैज बीन मेड अप ऑफ द एल सेक्शंस, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट इज रोल्ड टी सेक्शंस, ये रोल्ड टी सेक्शंस भी यूज होते हैं, ये सारे कॉमन सेक्शंस है, ये जो चारों भी आप स्टडी कर रहे हैं अभी, जैसे आई था, सी था और एल था, और ये फोर्थ वन इज द टी सेक्शंस। ये नॉर्मली ये चारों सेक्शंस नॉर्मली अपने साइड पे भी और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होता है, तो दीज आर कॉमनली यूज, ठीक है। अब टी सेक्शंस में देखो, यहाँ पे टी का भी अगेन जैसा यहाँ पे आई के जो नोमेनक्लेचर्स वी आर यूजिंग एज आई के लिए यूज होते हैं, जैसे एंगल्स के यूज होते हैं, और सी के वैसा यहाँ पे भी देखो इंडियन स्टैंडर्ड एन, ठीक है ना, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल बीम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल बीम सेक्शंस, ठीक है। एच स्टैंड्स फॉर हैवी, ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर द स्पेशल लेग टी सेक्शंस, ठीक है ना, एंड एल स्टैंड्स फॉर लाइट बीम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगेन आई एस एच टी, आई एस एल टी, आई एस एल टी में स्पेशल लेग्स के लिए भी यूज हो रहा है और लाइट बीम्स के लिए भी यूज हो रहा है। सेम एल स्टैंड्स फॉर द स्पेशल लेग एंड सेम एल स्टैंड्स फॉर द लाइट बीम, ठीक है। एच स्टैंड्स फॉर द हेवी बीम्स, एन स्टैंड्स फॉर द नॉर्मल बीम्स, ठीक है। अगेन दिखते वक्त कैसे दिखेंगे, ये टी शेप में रहता है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे टी शेप में। अगेन ये टॉप विड्थ रहेगा बी एफ, बी स्टैंड्स फॉर द टॉप एंड एफ स्टैंड्स फॉर द टॉप फ्लेंज, बी एफ, ठीक है, टॉप फ्लेंज, ठीक है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज भी होगा और थिकनेस ऑफ वेब भी होगा, जैसे आपने आई सेक्शंस में देखे थे। तो सेम क्राइटेरियाज में टोटल हाइट से आप मेंशन करेंगे, जैसा मैंने इससे पहले मैं बताया था 500, ठीक है ना। अगर किसी ने लिखा है आई एस एच टी, आई एस एच टी 500, तो दिस 500 स्टैंड्स फॉर द टोटल डेप्थ, 500 स्टैंड्स फॉर द टोटल डेप्थ, टॉप से लेके बॉटम तक अगर 500 अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो टोटल उसकी जो रहेगी डेप्थ। और उसके साथ साथ अगर मेंशन होता है 0.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, दैट इज द यूनिट वेट पर मीटर्स, उसका पर मीटर में कितना वेट रहेगा, ठीक है। तो वो एग्जांपल अपन ने पिछले आई सेक्शन में वी हैव सीन, ठीक है।
तो सेम थिंग इट हैज बीन टेकन केयर फॉर द टी सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इज बियॉन्ड दिस अदर सेक्शंस भी यूज होते हैं, ये थोड़ा सा अनकॉमन है इसका टिप्स में, तो इसलिए वी हैव नॉट टेकन दिस। तो अदर सेक्शंस भी यूज होते हैं, स्टील बार्स यूज होते हैं, जैसा राउंड बार्स यूज हो सकते हैं, स्टील के राउंड बार्स भी रहते हैं, स्टील के स्क्वायर बार्स भी यूज होते हैं, अगर कोई कनेक्शन पार्ट में यूज होता है तो स्क्वायर बार्स यूज होते हैं। आई एस ओ, आर ओ स्टैंड्स फॉर राउंड, आर ओ स्टैंड्स फॉर राउंड, आर क्यू स्टैंड्स फॉर स्क्वायर। स्टील ट्यूब्स होते हैं, रेक्टेंगुलर ट्यूब्स बोल सकते हैं आप, सर्कुलर दैट इज ट्यूब्स यूज होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, सर्कुलर रहते हैं, है ना। स्टील प्लेट्स यूज हो सकते हैं, प्लेट्स टॉप सरफेस पे कवर करने के लिए स्टील प्लेट्स विल आल्सो बी यूज। तो ये अदर सेक्शंस इट हैज बीन यूज, दैट इज द बार्स फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं, ट्यूब्स फॉर्म में भी यूज होते हैं और प्लेट्स फॉर्म में भी यूज होते हैं। बार्स फॉर्म में यूज हो गए, उसके बाद ट्यूब्स के फॉर्म में यूज हो गए, है ना, एंड प्लेट्स के फॉर्म में यूज होंगे, स्टील के प्लेट्स कैन आल्सो बी यूज्ड। नेक्स्ट इज हाउ टू डिसाइड द पर्टिकुलर सेक्शंस, ठीक है। पर्टिकुलर सेक्शंस को कौन से बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस सेक्शंस कैन बी यूज्ड, चॉइस ऑफ सेक्शंस कैसा रहेगा, ठीक है ना। गवर्न बाय सेक्शनल प्रॉपर्टीज एंड अवेलेबिलिटीज, उसके जो प्रॉपर्टीज है जैसे मैंने बताया था, व्हाट इज द डेप्थ, व्हाट इज द यूनिट वेट, उसका जो रहता है वो यूनिट वेट कितना है, ठीक है ना, पर मीटर्स में उसका क्या वेट है उसका। तो ऑल दिस थिंग्स विल गवर्न टू डिसाइड द सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शंस, ठीक है ना। ये सारी चीजें गवर्न करेगा कि वेदर वी हैव टू टेक अ पर्टिकुलर सेक्शंस फॉर डिजाइनिंग पर्पस, ठीक है ना। whether it is feasible to take a particular sections for the designing purpose will be decided on the properties, उसके जो क्या 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 sectional properties है, उसके availabilities है, उसका model, उसका various जो things है, sectional areas है, उसका depth है, will decide, ठीक है। अब नॉर्मली कौन सी यूज होता है कि इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम्स होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम दैट इज बीम्स इन द सेंस चैनल सेक्शंस यूज हो सकता है, टी सेक्शंस यूज हो सकता है, और इक्वल एंगल्स नॉर्मली ये जो चीज़ें हैं वी आर यूजिंग फॉर एनी स्ट्रक्चर, है ना। अपने पास जो यूज होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं, वैसा नॉर्मली हर एक मेंबर्स यूज कर सकते हैं अपनी एज फॉर द स्टील टेबल्स। Channels are used in purlins, T and angles in truss, I sections काय में यूज हो सकते हैं, T sections काय में यूज हो सकते हैं, ट्रस में यूज हो सकते हैं, I sections काय में यूज होगा, बीम्स एंड कॉलम्स में यूज होगा, ठीक है। चैनल सेक्शंस पर्लिन्स में टॉप में यूज होगा, चैनल सेक्शंस विल बी यूज इन द पर्लिन्स, तो दीज थिंग्स विल बी यूज, ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्शंस है, बिल्ट अप स्टेप्ड है, वाइड फ्लैंज है, हाइब्रिड सेक्शंस है, कोल्ड फॉर्म्ड है, ये सारे अदर सेक्शंस विल आल्सो बी यूज एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा अदर सेक्शंस कैन आल्सो बी यूज, अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्शंस कैन आल्सो बी यूज एज पर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब ये पूरा एक फिगर है जिसमें एवरीथिंग इट हैज बीन मेंशन्ड, ठीक है ना। ये एज गुड एज ये सेक्शन है जिसमें एवरी पार्ट इट हैज बीन मेंशन्ड। टॉप मोस्ट जो है ये देखो यहाँ पे सी सेक्शंस के में यूज हो सकता है, ठीक है ना, रूफ क्लैडिंग और ऊपर में। उसके बाद में ये सारा जो है वर्टिकल मेंबर्स जो है, ये वर्टिकल मेंबर्स या हॉरिजॉन्टल जो मेंबर्स है, यहाँ पे जो स्लैब जिस पर रेस्ट हो रहा है पर्लिन जो है वो भी इट हैज बीन पर्लिन, इट हैज बीन पर्लिन जो है वो इट हैज बीन मेड अप ऑफ द स्टील सेक्शंस। ये कॉलम है, कॉलम का जो ब्रेसिंग है, देखो ब्रेसिंग एक वर्ड यूज किए थे अपने थर्ड यूनिट में, ब्रेसिंग, है ना। लेज्ड एंड ब्रेस्ड कॉलम जो बोलते हैं, मतलब दो कॉलम्स के जो है उसको कनेक्शन, इंटर कनेक्शन लो ट्रांसफर करने के लिए ब्रेसिंग होता है, एक दूसरे को कनेक्शन करते हैं क्रॉस बार से, ठीक है। तो दैट क्रॉस अगेन बार्स कैन बी यूज फॉर द स्टील सेक्शंस, इट कैन बी मेड अप ऑफ द स्टील सेक्शंस, ठीक है। तो स्टील सेक्शंस में इट हैज बीन यूज्ड विद हेल्प ऑफ द स्टील सेक्शंस, ठीक है। तो ये कॉलम ब्रेसिंग जो रहेगा इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील ब्रेसिंग्स, रूफ टॉप इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील, लोअर जो रहेगा वो क्लैडिंग इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील, पर्लिन्स जो रहेगा वो स्टील सेक्शन से मेड होगा, ठीक है ना। ऑल दीज मेंबर्स इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है ना। ये सारा का सारा जो पूरा सेट जो दिख रहा है सेक्शंस में इट इज टोटली मेड अप ऑफ द स्टील, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, समझ में Yes, आ रहा sir. है, ठीक है। Yes. Yes, sir. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज का, तो थोड़ा सा एक कैसा है कि थिंग्स वी आर कवरिंग, ये ऑल दिस थिंग्स विल बी यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, है ना। जब आपके न्यूमेरिकल्स एज पर IS 800 2007 व्हेन वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद दिस, तो ऑल दिस बेसिक्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, बिकॉज ये सारे टर्म्स आपको नो होना है व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, है ना। अगेन लोड टेकिंग कैपेसिटीज कैसा रहेगा, लोड्स ऑन स्ट्रक्चर्स, डेड लोड्स, डेड लोड अगर रहेगा तो इट हैज बीन टेकन एज सल्फेट, एंड द पर्लिन लोड व्हिच हैज बीन मेंशन एज पर IS
IS 875 पार्ट वन है ना, पार्ट वन जो जस्टिफाई करेगा द लोड, लोड जो रहेगा आपका वो कौन जस्टिफाई करेगा, एज को द IS 875 पार्ट वन, डेड लोड्स विल बी टेकन, ठीक है, डेड लोड इज नथिंग बट द सल्फेट एंड द बर्निंग लोड, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, इट हैज बीन टेकन बाय IS 875 पार्ट वन, ठीक है। लाइव लोड कहाँ पर रहेगा, अगेन इट हैज बीन टेकन बाय IS 875 पार्ट टू, पार्ट टू विल मेंशन द थिंग्स, इट हैज बीन मेंशन लाइव लोड जो रहेगा चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, देयर इज पर्सन्स फर्नीचर लोड एक्सेट्रा लोड, which will be changing time to time, it has been mentioned in IS 875 part 2, तो part 2 में live load will be taken care. Again, wind load काम करेगा, देखो wind load it has been taken as from IS 875 part 3, इसमें wind load will be mentioned. Earthquake load जो रहेगा it has been taken from the IS code, that is 1873 1873 IS 1873. This will be used for taking the earthquake load, मतलब ये सारे load calculations जो रहेगा it will be taken as per this IS codes, ठीक है। IS codes it has been given the provisions for dead load, live load, wind load, earthquake load, तो ये सारे लोड्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स, एज पर द सिचुएशंस, एज पर द मतलब कौन से एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एज पर द कैलकुलेशंस यू हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द वेरियस कोड्स, ठीक है ना। 875 से पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड द अर्थक्वेक अगर डिजाइन करना है कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे अर्थक्वेक लोड्स विल बी टेकन, तो अगेन वी हैव टू रिफर द आईएस कोड एज IS 8 1893, ठीक है ना। ये सारे कोड्स विल बी टेकन केयर फाइल डिजाइनिंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल्स डिजाइन करते वक्त में ये सारे कोड्स वी हैव टू रिफर द कोड्स आल्सो। नेक्स्ट इज डिजाइन फिलोसफी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियसली आपने स्टडी किए होंगे या फिर प्रीवियस जो मेथड्स थे, वी आर यूजिंग एज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है ना। नाउ इज जो टोटली जो IS 800 2007 इट हैज बीन टेकन एज द लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, व्हाइल वी वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या था, तो स्ट्रेसेस दैट मींस द मटेरियल स्टार्ट्स टू यील्ड इज टेकन एज द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द सेक्शंस, जिसमें अगर यील्डिंग होता है, जो स्ट्रेस में यील्डिंग होता है मेंबर्स पे, वो परमिसिबल स्ट्रेस को विल बी टेकन फॉर कंसिडरेशन, ठीक है ना। वर्किंग स्ट्रेस में क्या होगा कि वर्किंग स्ट्रेसेस व्हिच हैज बीन टेकन केयर, स्ट्रेसेस एट व्हिच द मटेरियल स्टार्ट्स टू यील्ड इज टेकन एज द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द सेक्शंस. All sections are designed not to exceed the permissible stress. That means we cannot exceed beyond the permissible stresses, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेसेस से बियॉन्ड में आप डिजाइन ही नहीं हो सकता है। परमिसिबल स्ट्रेसेस जो डेवलप होते हैं दर इज एक्सटेंट, उसका जो एक्सटेंट तक जो लेगा दर इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस टेकन बाय द मेंबर्स, ठीक है। विल बी कंसिडर्ड इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होगा, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, उससे ऊपर में नहीं आप डिजाइन कर सकते, ठीक है ना। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस दैट इज नथिंग बट द यील्ड स्ट्रेस, जो यील्डिंग जो पॉइंट होता है उसका ब्रेकिंग बिफोर ब्रेकिंग जो होता है यील्डिंग पॉइंट, एंड फैक्टर ऑफ FOS इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर इसको डिवाइड करेंगे यील्डिंग स्ट्रेस से और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, दैट इज नथिंग बट द परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। तो सिंस स्टील कैन रेजिस्ट लोड आफ्टर यील्डिंग पॉइंट, फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन बकलिंग अनइकोनॉमिकल सेक्शंस। अब क्या होगा कि यील्डिंग होगा, अब जिसके वजह से सेक्शंस विल बी अनइकोनॉमिकल होगा, ठीक है ना। देयर विल बी बकलिंग लोड, बकल्स होगा, और सेक्शन क्या होगा, बिकॉज अगर उससे ज़्यादा भी अगर लोड आता है तो बकल्स हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज उसकी लिमिट है, लिमिट से ऊपर आएगा तो वी कैन नॉट दैट पर्टिकुलर लोड कैन नॉट बी टेकन फॉर द डिजाइनिंग पर्पस, ठीक है ना। परमिसिबल परमिसिबल स्ट्रेसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्टीमेट लोड मेथड्स, देयर इज द प्लास्टिक डिजाइन मेथड। ये भी थोड़ा सा ओल्ड मेथड था, जैसा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है और वैसी ही है अल्टीमेट लोड मेथड। ये भी थोड़ा सा एक अनकॉमन मेथड्स व्हिच हैज बीन यूज्ड, ठीक है। So permissible load is a load when all the fibers in the steel is yield. This method also does not ensure serviceability. ये भी थोड़ा सा सर्विसिबिलिटी इंश्योर नहीं करता है अल्टीमेट लोड मेथड्स, तो ये थोड़ा सा प्लास्टिक डिजाइन मेथड भी यूज, it has also been called as the plastic design methods, which is not commonly used nowadays. Maybe working stress method or ultimate load method, it has not been used, ठीक है। बट दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मेथड है इट विल बी यूज्ड फॉर द डिजाइनिंग पर्पस, ठीक है ना। कौन सा मेथड है देखो, लिमिट स्टेट मेथड। ये टोटल जो IS 800 2007 है जब रिवाइज हुआ था, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लिमिट स्टेट मेथड। आई एम रिपीटिंग, we are designing the we will cover the problems related with the लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है ना। जो सारा जो डिजाइनिंग पर्पस होगा, डिजाइनिंग जो कंसेप्ट हो गए, डिजाइनिंग जो स्टेप्स हो गए, या फिर जो आज के जो स्टील स्ट्रक्चर जो डिजाइन होगा एज पर द लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। दैट मीन्स इसमें क्या रहेगा, इट इज totally based on the strength,
स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी, ये दोनों अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा बाय कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ आवर टीम मेंबर्स एंड बाय सर्विसिबिलिटीज। व्हाट इज द सर्विसिबिलिटी? सर्विसिबिलिटी क्या है? टर्म रिलेटेड विद द मिनिमम डिफॉर्मेशन होगा, डिफ्लेक्शन भी मिनिमम होगा, क्रैक्स भी, वाइब्रेशंस भी, करोजन टू इंश्योर एस्थेटिक व्यू, फंक्शन एबिलिटीज एंड सेफ्टी टू पार्टीशंस, ये सारा मिनिमम होगा। दैट मीन्स द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर्स विल बी मोर ड्यूरेबल। सर्विसिबिलिटी, सर्विस क्या होगी इसकी? Serviceabilities or the durabilities of the life of the structures will be more while designing with the limit state method, ठीक है। तो लिमिट स्टेट मेथड में क्या होगा? मिनिमम डिफॉर्मेशन होगा, डिफ्लेक्शंस होगा, मिनिमम डिफ्लेक्शंस हो, क्रैक से मिनिमम वाइब्रेशंस, मिनिमम करोजन टू द एस्थेटिक यूज होगा, फंक्शनैबिलिटीज होगा, सेफ्टी टू द पार्टीशंस, ये सारा मतलब सेफ्टी रहेगा पार्टीशंस अगर कहीं यूज होता है, तो ये सारा कंसिडर होगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। अब स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज स्ट्रेंथ? तो स्ट्रेंथ शुड बी स्टेबल एंड नॉट कोलैप्स अंडर लोड। मतलब क्या है कि वो कोलैप्स नहीं होगा, वो मतलब बिल्डिंग जो है, स्टील स्ट्रक्चर्स जो है, वो मतलब फ्रैक्चर्स और जो कोलैप्स, सडन कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है। वी विल डिजाइन द स्ट्रक्चर्स बाय कंसीडरिंग द लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग, दैट मींस स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड, ठीक है। मतलब इट विल टेक द मैक्सिमम लोड, maximum load will be taken by the particular member, ठीक है। तो serviceabilities and strength will be considered by limit state method. This will be used for the designing of the steel member, ठीक है। तो ये सारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स ये जो है वो टेबल्स में गिवन है। दैट इज आईएस के जो टेबल है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि कौन से आईएस कोड के कौन से स्टेप्स कंसिडर होते हैं डिजाइनिंग में, ठीक है ना। मेरे पास एक एक्सेल शीट भी है स्मॉल, जिसमें आई हैव मेंशन द डिस्क्रिप्शन, मतलब कौन सी थिंग आपको लेना है आईएस कोड के कौन से पेज नंबर से, ठीक है। So all these things we will see in next lectures. We will refer to IS 800 2007 in next lectures रिगार्डिंग लिमिट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर, ये सबको समझ में आया? यस, Yes, sir. Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आज का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि वी हैव सीन द डिफरेंट स्टील सेक्शंस, वी हैव सीन द इंट्रोडक्शंस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन आपने जो आपके माइंड्स में जो डिफरेंट थिंग्स होंगे स्टील से रिलेटेड, वो आज के लेक्चर से क्लियर हो गए होंगे कि स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है, स्टील स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स कैसे होते हैं, कैसा आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, कैसे वेरियस मेंबर्स कंसिडर होते हैं, है ना, उसका क्या क्या पैरामीटर्स पे आप कंसिडर कर सकते हैं। ये सारे आज के लेक्चर्स में आपको थोड़ा सा आइडिया स्टील स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में वी विल हैव द एक्चुअल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग अ पर्टिकुलर स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। टेंशन मेंबर्स, कंप्रेशन मेंबर्स, या फिर जो डिफरेंट मेंबर्स है जो एक्चुअल डिजाइन होता है उसके एज पर IS 800 2007 व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है ना। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। ठीक। तो आपके अटेंडेंस भी आप यू हैव टू राइट डाउन योर अटेंडेंस इन अ चैट बॉक्स, ठीक है। और अगर किसी को क्वेरीज है, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद टुडेज लेक्चर्स या फिर प्रीवियस लेक्चर्स में जो आपने कुछ ऐसा थिंग मतलब देखा होगा कि विच हैज नॉट अंडरस्टूड इन द स्लाइड्स, ऐसा कुछ है, तो यू कैन आस्क एनी डाउट्स इज देयर रिलेटेड विद एनी स्लाइड जो मैंने अभी तक जो बताया है। तो अगर आप है तो कुछ यू हैव टू राइट डाउन इन चैट बॉक्स, या फिर आपको पूछना है तो यू कैन आस्क, ठीक है। राइट डाउन योर रोल नंबर्स इन द चैट बॉक्स में रोल नंबर्स आपके, राइट डाउन योर रोल नंबर्स